as we are celebrating the Father's Day. जबकि हम पिता दिन मना रहे हैं आज, Whole world is celebrating the Father's Day. संपूर्ण संसार आज पिता दिन मना रहा है। I greet all the fathers in the name of Jesus. सारे पिताओं को मैं यीशु के नाम से आशीर्वादित करता और अभिनंदन देता हूँ। As we are sitting in the house of God, जबकि हम परमेश्वर के भवन में बैठे हुए हैं, I want to tell something about the Father's Day. मैं पिता दिन के बारे में कुछ बताना चाहता How हूँ। the Father's Day was come. पिता दिन कैसे आया। In the United States, और अमेरिका में there was one lady, her name was Grace Golden Clayton. और अमेरिका में एक स्त्री थी, उनका नाम था ग्रेस गोल्डन Clayton. क्लेटन। In the year 1908, और 1908 में she suggested that there should be the Day of Man. उन्होंने एक सुझाव दिया कि एक आदमियों के लिए भी एक दिन होना चाहिए। And many people rejected और her thought. और उसके विचार को काफी सारे लोगों ने नकारा। But her idea was rejected soon after the year 1909. और 1909 में जब उसने उसको नकारने के बाद 1909 में Sonara Smart Dot convinced higher authorities to dedicate the day of the fathers of the country. सोनारा स्मार्ट डॉट ने और अथॉरिटी को कन्विंस किया कि फादर्स डे मनाया जाए। Now Sonora, along with 6 of her brothers, were raised by their fathers alone. सोनारा जो थी उसके 6 भाई थे और उसके पिता ने उनको बड़ा किया था। When she attended the church on Mother's Day, she felt the need for existence of the Father's Day as well. जब वो अपने परिवार के साथ मातृ दिन मनाने चर्च में गई थी, तब उसको लगा कि पिता दिन भी होना चाहिए। So every person celebrate Mother's Day. There was no Father's Day. और हर एक व्यक्ति मातृ दिन को मनाता है और कोई पिता दिन नहीं होता है। And she decided that we should celebrate the Father's Day also. और उसने निश्चय लिया कि हमें पिता दिन भी मनाना चाहिए। And so, the first ever official Father's Day was be celebrated in the year 19 June 1910. और पहला जो पितृत्व दिन है वो 19 जून को 1910 में मनाया गया। In YMCA in Washington. और YMCA में वाशिंगटन में। The credit for this idea, however, still goes to the Clayton, as she was the first one to light this spark. और ये जो इसका ये सारा श्रेय जो है वो क्लेटन को जाता है, जिन्होंने ये इसकी शुरुआत की। The celebration of Father's Day also facilitated a day dedicated to men other than fathers. और हा जो दिवस आहे तो माणसांना समर्पित गेलेला आहे. This day is called the International Men's Day, as usual celebrate on November 19. और ये दिन जो आदमियों के लिए मनाया गया जो 19 जून था। Just like many other countries, they celebrate the Father's Day. It come in India also. जैसे कि पूरे संसार में मनाया गया, ये भारतवर्ष में भी इसका शुरुआत हुई। And every day, the third Sunday of June is dedicated to the celebrating the fathers of India. और हर साल जून महीने के तीसरे सप्ताह में फादर्स डे मनाया जाता है। All big cities take part in the celebration of Northeast. Father's Day is marked as a huge day when Christians that are come together to church to celebrate their fathers as a part of their Sunday service. और नॉर्थ ईस्ट में सारे कलीसिया के लोग एकत्रित आते हैं और फादर्स डे को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। Now previous there was no Father's Day. इसके पहले फादर्स डे मनाया नहीं जाता But था। nowadays many churches are celebrating Father's Day. और आप देखते हैं कि काफी सारी कलीसिया फादर्स डे को मनाती है। Father is very much important. पिता जो है अपने जीवन में काफी महत्वपूर्ण If व्यक्ति we है। study the word of God, यदि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें in whole Bible we see the love of Father. और हम देखते हैं संपूर्ण बाइबल में पिता के प्रेम के बारे में हम देखते हैं। He is our heavenly Father. वो हमारा स्वर्गीय पिता है। He is a compassion God. और वो तरस खाने वाला परमेश्वर He है। is a loving God. वो प्रेम करने वाला परमेश्वर And है। we see how the Father loved the mankind. और हम देखते हैं किस तरह परमेश्वर पिता ने मनुष्य जाति पे अपना प्रेम दिखाया। And when we read in the book of Genesis, यदि हम उत्पत्ति की किताब में पढ़े, it is written that God says, I will make man in my own image. हम देखते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को अपनी रीति में बनाऊंगा। It means the character which is in the
God the Father, it comes into the mankind. इसका अर्थ है कि परमेश्वर पिता में जो गुण थे वो सारे मनुष्य में आए। Today I want to just encourage that our Heavenly Father is a Father who has that compassion. और मैं आज कहना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है उसके उसमें जो तरस है वो हमें भी होना चाहिए। One day we were not good with our father. एक दिन ऐसा था कि हम अपने पिता के साथ अच्छे नहीं थे। There were broken relationship with our father. हमारे पिता के साथ हमारा रिश्ता टूटा हुआ But था। our Heavenly Father sent His only begotten Son, और हमारे परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा Jesus Christ. और यीशु मसीह, He died on that cross. और वो क्रूस पे अपनी मृत्यु को सहा By His sacrifice, और उसके बलिदान के द्वारा our relation is been good to our Heavenly और Father. उसके बलिदान के द्वारा हमारा और परमेश्वर पिता का रिश्ता फिर से जुड़ गया। It is that because of His love. और उसके प्रेम के कारण We see in the book of Luke also about the story of prodigal son. और हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में भी देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में। In that prodigal son, we see that story about the son who left his father with a property. और हम देखते हैं कि वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से सारी अपनी प्रॉपर्टी लेके चला गया। And in that chapter we see he hurt his father. और उसने अपने पिता की बात को नहीं सुना। If we read that chapter, और यदि हम उस अध्याय को पढ़े, we'll turn that book Luke chapter 15. और लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। And in that chapter we see there was a man who were having two sons. और हम देखते हैं कि एक मनुष्य है जिसको दो पुत्र है। Chapter 15 15वां अध्याय and verse 11 onward it says there was a man who has two sons. और यहाँ लिखा हुआ है कि किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। And the younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. और उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। And the word of God says, और वचन कहता है, after a few days, कुछ दिनों के बाद he took his money, his property and went away to the long city. उसने अपना प्रॉपर्टी और पैसा लेकर शहर की ओर चला गया। And in this story we read he spent everything. और हम यहाँ देखते हैं कि उसने अपना सारा पैसा उड़ा दिया। And the word says where he was living there came a famine. और हम देखते कि वहाँ काफी अकाल पड़ गया। And he was in a critical situation. और काफी कठिन परिस्थिति में वो आ गया। There was no food to eat him. और उसके लिए खाने के लिए भी भोजन नहीं था। And after a few days he realized that I have done wrong against my father. और कुछ दिनों के बाद उसे महसूस हुआ कि मैंने अपने पिता के विरुद्ध में गुनाह किया। And he realized that I have hurt my father. और उसे महसूस हुआ कि मैंने अपने पिता को दुखाया है। And he thought that I should go to my father. और उसे लगा कि मुझे अपने पिता के पास वापस जाना चाहिए। And we see how his father accepted the boy who was very much bad with his father. और हम देखते कि उसके पिता ने उसको किस रीति से ग्रहण किया कि वो जब उसके साथ दुष्टता से भी चला फिर भी उसने उसको ग्रहण किया। And in this chapter we read that how he loved his father, how he hugged his son. और हम देखते कि इस अध्याय में किस तरह उस पिता ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। Though he treated very badly with his father, यद्यपि उसने अपने पिता के साथ बुरा व्यवहार he किया, hurt his father. उसने अपने पिता के मन को दुखाया, But when he come again to his father with unrepentant heart, जब वो पश्चाताप के साथ अपने पिता के पास वापस आया, he accepted the son. उसने अपने पुत्र को ग्रहण कर लिया। It means we see that there was a compassion heart in the life of fathers. यहाँ हम देखते कि पिता के हृदय में एक तरस वाला हृदय रहता है। Secondly, we see that family was broken. हम देखते कि दूसरा उदाहरण जो एक परिवार था टूटा हुआ था, And he united the family. और उसने अपने परिवार को जोड़ दिया। See how father loves the family. और देखे कि किस तरह पिता अपने परिवार से प्रेम करता है। Same love is kept in the father's life. और उसी तरह का प्रेम परमेश्वर ने पिताओं के हृदय में रखा है। So today I want to encourage all the sons and daughters. और आज मैं सारे पुत्र और पुत्रियों को उत्साहित करना चाहता हूँ, Love your father. अपने पिता से प्रेम करिए। Though you may be hurt by your father, हो सकता है आपके पिता के द्वारा आपको दुख हुआ हो, but still we need to love our father फिर भी हमें अपने पिता से प्रेम रखना है, because it is the image of God. क्योंकि वो परमेश्वर पिता की ओर से है। It is the plan of God. वो परमेश्वर पिता की योजना है। We see how father loved his family. हम देखते हैं कि पिता किस तरह से अपने परिवार से प्रेम रखते हैं। Most of the time we just praise mothers. काफी बार हम सिर्फ माताओं के बारे में ही उनकी प्रशंसा करते But हैं, what about father? परंतु पिताओं के बारे में क्या? Father never tells his pain to other. पिता अपने दुख को किसी से बांटता नहीं है।
today I want to encourage you. आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। Father is a very much important role in the family. पिता का जो रोल है परिवार में काफी महत्वपूर्ण है। God have kept him as a leader in the family. परमेश्वर ने पिता को एक नेतृत्व देने के लिए परिवार में रखा है। And so father is very much important. पिता काफी महत्वपूर्ण है। Last week I was in Hyderabad. पिछले सप्ताह पास्टर जी हैदराबाद में थे। I met with two young boys. दो जवान लड़कों से वो मिले। While I was speaking with them, जब पास्टर जी उनसे बात कर रहे I थे was asking about their family. उनके परिवार के बारे में पूछ रहे थे। The Muslim guy told me that his father passed away when he was very much small. और वो मुस्लिम लड़के ने बताया कि जब उसके पिता गुजर गए जब वो काफी छोटा था। His mother raised him. और उसके माता ने उसको बढ़ाया। Next brother who was the believer who goes to church regularly. और दूसरा भाई जो था वो विश्वासी था और प्रतिदिन हर बार कलीसिया में जाता था। He is a software engineer. वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। While I was speaking with him, और जब मैं पास्टर जी उनसे बात कर रहे थे and I was talking about his family, और उनके परिवार के बारे में बात कर रहे थे I asked about his father, और उसके पिता के बारे में पूछा and he told that I am not having father. और उसने कहा कि मुझे पिता नहीं है। When I was child, I lost my father, और जब मैं छोटा था मैंने अपने पिता को खो दिया। and I was very much surprised how this woman raised their children. मुझे काफी आश्चर्य हुआ किस तरह से उस स्त्री ने अपने बच्चों को बड़ा किया। Sometime mother play the role of father and mother also. काफी बार माता जो है पिता और माता दोनों का रोल निभाती है। So father and mother is very much important in the family. पिता और माता दोनों काफी महत्वपूर्ण है परिवार में। Most of the time children never listen to father and mother. काफी बार बच्चे जो है अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनते। They ignore the words of the father and mother. और अपने माता पिता की बातों को ऐसे ही उड़ा देते But हैं। church, let me encourage you, young boys and girls, let me encourage you. और जवान बच्चों में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। Your father and mother is a blessing for you. आपके माता पिता आपके लिए आशीर्वादित है। There are many children, they are not having the love of father and mother. और काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको माता पिता का प्रेम नहीं मिल पाता। Few months before I lost my father. कुछ महीनों पहले पास्टर जी ने अपने पिता को खो दिए। Suddenly I realized that I am not having father. और उनको महसूस हुआ कि उनके ऊपर से पिता का प्रेम चला गया है। I was never thinking about father, but when my father lost, I realized there should be father in the life of son. और जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया तब उनको महसूस हुआ कि पुत्र के जीवन में पिता का होना कितना महत्वपूर्ण है। Though father is not doing anything in the house, हो सकता है आपका पिता आपके घर में कुछ ना करता हो, but the presence of father is very much important. परंतु पिता की उपस्थिति काफी महत्वपूर्ण है। Because he is the blessing for us. क्योंकि वो अपने लिए आशीर्वादित है। So today morning, as we are celebrating the Father's Day, जबकि आज हम पिता दिन मना रहे हैं। children, meet your father, hug them and say, I love you, father. बच्चों आप अपने पिता से मिले, उनके गले लगिए, उनसे कहिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। They will be very much happy. और वो काफी खुश हो जाएंगे। Love your father. अपने पिता से प्रेम रखिए। Love your mother. अपने माता से Because प्रेम रखिए। they are blessing for you. क्योंकि वो हमारे लिए आशीर्वाद है। As we are celebrating this Father's Day, जबकि हम फादर्स डे मना रहे हैं। I want to concentrate your mind on the life of Joseph, the father of Jesus. और हम यूसुफ के बारे में आज मनन करेंगे जो यीशु मसीह के पिता थे। There should be a good qualities in the life of fathers also. पिता के जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। Most of the fathers are so much busy in their work. और काफी सारे पिता जो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। But father, you are the very much responsible person in your family. पिता जो है अपने परिवार के लिए काफी जिम्मेदार व्यक्ति होता है। So you are the very much important person. इसलिए आप काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। Just don't think that you are called only to work in company or in your workplace. सिर्फ ऐसा ना सोचे कि आप सिर्फ काम करने के लिए आपको बुलाया गया है। But your important role is in your family. परंतु आपका काफी महत्वपूर्ण रोल जो आपके परिवार के प्रति है। So never neglect your family. अपने परिवार के बारे में कभी उसकी उपासना अवहेलना ना कीजिए। Just don't think my family look after my wife look after my family. ऐसा ना सोचे कि मेरी पत्नी मेरे परिवार का देखभाल करेगी। You are the responsible person. आप वो जिम्मेदार व्यक्ति है। So today morning I want to just share 4 things about Joseph. यूसुफ के बारे में 4 बातें मैं बताने जा रहा हूँ। Here we see in the book of Matthew chapter 1. मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम देखते हैं। In this chapter we see how the life of Joseph was as a father. और याद हम देखते हैं कि यूसुफ का पिता के रूप में किस तरह उसका जीवन था। First thing in his life was that पहली बात जो उसके जीवन में थी, Joseph was the righteous man.
यूसुफ जो था एक धर्मी व्यक्ति था, He was the righteous man. वो एक धर्मी व्यक्ति था, He was the righteous father. वो एक धर्मी पिता था। If we read this chapter, यदि हम इस अध्याय को पढ़े, chapter 1 and verse 18, पहले अध्याय का 18वां पद, it is written Joseph accepted Jesus as his son. और यूसुफ ने यीशु को अपना पुत्र स्वीकारा। तर या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की योसेफाने येशूचा पुत्र म्हणून स्वीकार केला. He accepted Jesus as his son. उसने यीशु मसीह को अपने पुत्र के रूप में ग्रहण किया। Why he accepted Jesus as a son? क्यों उसने यीशु मसीह को अपने पुत्र के रूप में ग्रहण किया? Because he was a righteous man. क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था। Righteous man means doing right things in front of God. और धर्मी व्यक्ति मतलब परमेश्वर के प्रति एक सही बातों को करना। As a father, और पिता के रूप में, in the family and in the world, और परिवार में और संसार में, the father must be the righteous man. और पिता जो है एक धर्मी व्यक्ति बना रहना चाहिए। He must be the righteous person. वो एक धर्मी व्यक्ति बनना Now चाहिए। in the life of Joseph we see he was a righteous man. हम यूसुफ के जीवन में देखते कि वो एक धर्मी व्यक्ति था, And because of that God blessed this person. और उसी के कारण परमेश्वर ने उसे आशीर्वादित किया। So today morning I want to encourage you as you are the father playing role in your family. और आज सुबह मैं आपको उत्साहित करता जब कि आप अपने परिवार में एक पिता का रोल निभा रहे हैं। Are you a righteous man? क्या आप एक धर्मी व्यक्ति हैं? Are you are doing right things in the sight of God and in the sight of man? क्या आप परमेश्वर के प्रति सही बातों को कर रहे हैं? Now here we see the life of Joseph. हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं। It was not easy time to accept Mary. और वो कठिन समय था कि मनुष्य को ग्रहण करे। येशू ख्रिस्त योसेफाला हा समय फार कठीण होता की मरियेचा स्वीकार करणं. Because she was pregnant. और मरियम जो थी वो गर्भवती थी। It was not easy. और वो काफी कठिन बात थी उसको ग्रहण करना। But the word of God says परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा he है was a righteous person. वो एक धर्मी व्यक्ति था। He was doing right things in the sight of God. वो परमेश्वर के दृष्टि में सही बातों को कर रहा था। Today morning I want to encourage you as a father. और पिता के रूप में आपको एक उत्साहित करना चाहता We हूँ। are living in the wicked world. हम दुष्ट संसार में है, And in this wicked world, और इस दुष्ट संसार to में live as a righteous person is very much hard. और धर्मी व्यक्ति बने रहना काफी कठिन बात है। Because all over the world we see wickedness. और संपूर्ण संसार में हम दुष्टता देखते हैं। But in this wicked world, परंतु इस दुष्ट संसार में we must be the man, righteous person. हमें एक धर्मी व्यक्ति बने रहना है। When we will be the righteous man, जब हम धर्मी व्यक्ति बनेंगे, God's eyes will be upon us. और तो परमेश्वर की दृष्टि हमारी ओर लगी रहेगी। We see the life of Abraham. हम अब्राहम के जीवन को देखते He हैं, was a righteous man. वो एक धर्मी व्यक्ति था। We see the life of Noah. हम नोहा के जीवन को देखते We see हैं, the life of Job. और हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं। These people were righteous people. वो सारे धर्मी व्यक्ति थे, The eyes of the Lord were upon them. और परमेश्वर की दृष्टि उन पर निरंतर And थी। in this wicked world, और इस दुष्ट संसार में if we will live the righteous life, यदि हम धर्मी जीवन को जीते हैं, the eyes of the Lord will be upon us. तो परमेश्वर की दृष्टि हमारी ओर लगी Now रहेगी। here we see in the life of Joseph, हम यहाँ यूसुफ के जीवन के बारे में देखते he हैं, was a righteous man. वो एक धर्मी व्यक्ति था। This quality is very much important in the life of a father, और पिता के जीवन में भी एक क्वालिटी होना चाहिए that we must be the righteous person. कि हम एक धर्मी व्यक्ति बने, Right things doing for God. परमेश्वर की दृष्टि में सही बातों को करें। Are we doing right things? क्या हम सही बातों को कर रहे हैं? There are so many fathers, they are not doing right things. और काफी सारे पिता जो सही बातों को परमेश्वर की दृष्टि में नहीं करते, Because of that, they are not seeing wonderful things happening in their life. और उसी कारण वो अपने जीवन में अद्भुत बातों को नहीं देख पाते। Today, I want to encourage you. मैं आपको आज उत्साहित करना As a चाहता हूं। father, एक पिता we must be the righteous man. हम एक धर्मी व्यक्ति बनना चाहिए। Second thing in the life of Joseph was, और दूसरी बात जो यूसुफ के जीवन में थी, he was a man of dignity. और वो आदर युक्त व्यक्ति था। People used to respect him. और लोग उसका आदर करते थे। But when he faced a critical situation in his life, और जब उसके जीवन में कठिन समय आया, he was engaged with Mary. और उसकी सगाई हो गई मरियम के साथ, And suddenly he came to know और जब उसे पता चला, that his wife is pregnant. और जब उसकी मंगेतर जो थी वो गर्भवती है, The word of God says in 19th word, और 19वें पद में लिखा है, because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace
he had in mind to divorce her quietly. अंततः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। It means the problem was raised in the family. और इसका अर्थ है परिवार में समस्या आई। He didn't expose the problem in outside. जो समस्या आई उसने बाहर नहीं बताई। The problem was raised in the family. उसके परिवार में समस्या उत्पन्न हुई। He handled the problem very nicely. उसने उस समस्या को अच्छी तरह से संभाला। As a father, we need to look after our family. और पिता के नाते हमें भी अपने परिवार को संभालना We चाहिए। are the leader of our family. हम अपने परिवार के अगुवे हैं। Problem take place in our family. हमारे परिवार में समस्याएं तो आती रहती Sometimes है। problems come in husband and wife. काफी बार पति और पत्नी में समस्याएं आती है। Sometimes problem comes by children. संतानों के द्वारा समस्या आती है। Sometimes problem come in the relatives, relationship also. रिश्तेदारों में भी समस्याएं आती है। And most of the time, many fathers, they go and expose everything about our children and about our relatives. और काफी बार जो पिता जो है सब तरफ बता देते कि उनके परिवार में क्या चल रहा है। Many fathers we see, they talk about their children anyway. काफी बार हम पिताओं को देखते हैं अपने पुत्र के बारे में सब तरफ बताते फिरते Let हैं। me tell you, never expose anything about your family. कभी भी अपने परिवार के बारे में बाहर बातें ना करें। Here the word of God says, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा when है, problem was arise in the family of Joseph, जब यूसुफ के परिवार में समस्याएं आई, when he came to know that her wife is pregnant, जब उसे पता चला कि उसकी मंगेतर गर्भवती है, the word of God says, वचन में लिखा है, he did not expose उसने इसका बाहर में कोई बातें and he नहीं की। think in his mind to divorce quietly. उसने सोचा कि उसको गुप्त रूप से त्याग दे। He was taking care of his family. वो अपने परिवार का ध्यान रख रहा He था was taking care of his Mary, और वो मरियम का ध्यान रखना चाहता था, about her character. उसके चरित्र के बारे में। It means he was taking care of his family. इसका अर्थ है अपने परिवार के बारे में वो ध्यान रखता As a था। father, we need to take care of our family. एक पिता के नाते हमें भी अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। Don't murmur anywhere about our family. अपने परिवार के बारे में कुरकुर ना करे Handle it in a proper way. और उसको अच्छी तरह से उसको संभाले, Because father is a leader. क्योंकि पिता जो है अगुवा है, He should lead his family. उसे अपने परिवार की अगुवाई करना चाहिए। God have kept you as a leader. परमेश्वर ने आपको एक अगुवे के रूप में रखा है। So second thing in his life was that और दूसरी बात जो उसके जीवन में थी he was a dignified man. कि वो आदर युक्त व्यक्ति था, And so he handled the matter in a very nicely. और उसी तरह उसने अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाला। Whatever problem will arise in your family, और जो कुछ समस्या आपके परिवार में आए handle it properly. उसको अच्छी तरह से संभालिए, And God will help you to handle it. और परमेश्वर आपको सामर्थ देगा उसको संभालने के लिए। Third thing in his life was that और तीसरी बात जो उसके जीवन में थी, he was a man of obedience. और वो एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। How he was the man of obedience? वो किस तरह से आज्ञाकारी था? The word of God says, वचन में लिखा है, as God appeared, angel appeared in front of him. जब स्वर्गदूत उसके सम्मुख आया, 20 words says, after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. जब वह इन बातों के बारे में सोच रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। 21 वर्ड says, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. 21वें पद में लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। Now here the word of God says, the angel of the Lord came by God. परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके सम्मुख आया, And God is telling by angel that accept Mary as your wife. परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा उससे कह रहे थे कि तुम मरियम को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। Now it was very hard to him और उसके लिए काफी कठिन बात थी, to accept a pregnant girl or pregnant woman as a wife. और एक गर्भवती स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करना काफी But कठिन the बात है। word of God says, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है, he obeyed the command of God. उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। He obeyed the command of God. उसने परमेश्वर की आज्ञा का It पालन means किया। he was an obedient person. इसका अर्थ है कि वो एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। Now here the word of God says, और यहाँ वचन में लिखा हुआ है, whenever
God was instructing him to obey, he used to obey. जब कभी परमेश्वर उसको आज्ञा देते आज्ञाकारी बनने का तो आज्ञा का पालन करना In करता this था। chapter, we see when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord has commanded him and took Mary home as his wife. और जब वो सो रहा था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके सम्मुख आया, उसको कहा कि मरियम को अपने पत्नी के रूप में अपने घर में लेकर आ। And the word of God says, but he did not consummate their marriage until she gave birth to a son. And he gave him the name Jesus. और यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। He obeyed the command of God. उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। I want to tell you, he was an obedient person. मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। Then afterward we see in chapter 2 and verse 13. और हम दूसरे अध्याय में आगे देखते हैं। When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. और जब वो यीशु का जन्म हुआ तब स्वर्गदूत उसके सम्मुख आया, उसे कहा कि तू अपने पुत्र को मिस्र में ले जा, क्योंकि हेरोदेस जो है उसको ढूंढ रहा है। The word says, so he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt, where they stay until the death of Herod. और वो अपने पत्नी और पुत्र को लेकर मिस्र में चला गया जब तक कि हेरोदेस की मृत्यु न हुई। Secondly, we see in the word 19, after Herod died, and the angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, get up, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who were trying to take the child's life are dead. और 19वें पद में लिखा है, हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। See here, God was telling and he was listening. यहाँ हम देखते कि परमेश्वर को बता रहे, उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। Go here, go there, come here, go there, and whatever God was telling, he was listening. परमेश्वर उसको कह रहे यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जो कुछ उसको आज्ञा दे रहे वो आज्ञा का वो पालन करते जा रहा Whatever है। he was getting instruction, he used to follow the instruction. जो कुछ सूचनाएं उसको मिलते जा रही थी उस सूचनाओं का वो पालन करता है। It means he was an obedient person. इसका अर्थ है कि वो आज्ञाकारी व्यक्ति As a था। father, we would never like to obey someone. और पिता के रूप में हम कभी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते, But let me encourage you. परंतु मुझे आपको उत्साहित करने We दीजिए। must obey the command of our father. परंतु हमें अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। We must obey the commandment of our God. हमें अपने परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का पालन करना He चाहिए। was the obedient person. वो एक आज्ञाकारी व्यक्ति And था, because of that, he was a blessing for his family. और उसी कारण वो अपने परिवार के लिए आशीर्वाद का There कारण are बना। many fathers, they do not obey the command of their heavenly father. और काफी सारे पिता जो अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन नहीं The करते। father, I want to encourage you. और पिता मैं आपको उत्साहित करना If you चाहता want हूँ, to be a blessed father to your family, यदि आप अपने परिवार के लिए आशीर्वादित पिता बनना चाहते हैं, obey the commandment of God. और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन We कीजिए। see the life of Abraham. अब हम अब्राहम के जीवन को At the देखते हैं, age of 100, और 100 साल का होने के he बाद got a son Isaac. और उसको इसहाक हुआ, And God told him that I want a sacrifice of your son. और परमेश्वर ने कहा कि मुझे तुम्हारे इस पुत्र का बलिदान चाहिए। And it was not easy to sacrifice Isaac. और इसहाक का बलिदान देना काफी सरल बात नहीं थी। When I read this story, जब इस कहानी के बारे में सोचता हूँ, at that time I realized he never told that God is asking his son as a sacrifice to his wife. और परमेश्वर ने उसके पत्नी को नहीं पूछा कि तुम्हारा पुत्र मुझे बलिदान के रूप में चाहिए। अब्रामाने त्याच्या बायकोला सांगितलं नाही की मी मुलाचं अर्पण करणार आहे, देवाने मला सांगितलं मुलाचं अर्पण पाहिजे म्हणून. He was just obeying the command of God. उसने सिर्फ परमेश्वर की And went to sacrifice Isaac. कब इसहाक का बलिदान देना है, आणि सॅक्रिफाईस करण्यासाठी, बलिदान देण्यासाठी इजाकाला तो घेऊन डोंगरावरती गेलेला आहे. त्याने निर्णय घेतलेला आहे की जाऊन मी काय करल, इसाकाचं अर्पण करल. ही वॉज रेडी टू सॅक्रिफाइस आयझॅक. और वो इसहाक को लेकर उस पर्वत पर चला गया उसका बलिदान देने के ही लिए। वॉज ओबेइंग द कमांडमेंट ऑफ गॉड. वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर इट रहा वॉज था, हार्ड टाइम टू लिसन गॉड. और एक काफी कठिन बात जी थी कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। एट दैट प्लेस यू एंड मी वर देयर. व्हाट वुड से वी मस्ट से टू गॉड.
आज उसकी जगह यदि हम होते तो हम परमेश्वर से क्या कहते? After many years you have gave the child and now you are asking the son. और हम परमेश्वर से कहते कि परमेश्वर काफी सालों के बाद आपने मुझे एक पुत्र दिया, उसका भी बलिदान आप चाहते हैं। It is not fear, Lord. और ये सही बात नहीं है परमेश्वर। At the age of 75 you called me. 75 वर्ष होने के बाद आपने मुझे बुलाया You show me big dreams. और आपने मुझे काफी सारे स्वप्न दिखाए। I will make you a great nation from you. तुम्हारे द्वारा एक बड़ी जाति को मैं बनाऊंगा, ऐसा स्वप्न दिखाया। And after 25 years you gave a son. और 25 साल के बाद आपने मुझे एक पुत्र दिया। Now I am ready to die. आज आप मैं मरने वाला हूँ। And now you are asking my son. और आप मुझे मेरे पुत्र का बलिदान चाहते हैं। This is not fair. ये सही बात नहीं I will परमेश्वर, not give. मैं नहीं दूंगा। But he was ready to give his son. परंतु वो अपने पुत्र का बलिदान देने के लिए तैयार And हो when गया। he obeyed the command, जब उसने आज्ञा का पालन किया, the word of God says God was very much pleased on him. हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर उस पे काफी प्रसन्न हुए। Father, time will come in your life आप ऐसी बातें आपके जीवन में आएंगी, that God will command you. परमेश्वर आपको आज्ञा देंगे। You must be the decision maker. आपको निर्णय लेना है। That at that time you should take a decision उस समय आपको निर्णय लेना है to follow the command of God. परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने Most का। of the time we never follow the command of God. काफी बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। Most of the time we become selfish in our life. हम काफी बार हम खुद के ही बारे में सोचते हैं। Many fathers, they pray for many things in their life. काफी बार पिता अपने जीवन के बारे में बहुत सारी बातों के लिए And प्रार्थना God करते bless हैं। them. परमेश्वर उनको आशीर्वादित भी But करते हैं। when the time comes to sacrifice something to Lord, जब समय आता है कि परमेश्वर के लिए कुछ बलिदान करे, at that time they hold themselves. उस वक्त वो अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। But let me tell you, मुझे बताने दीजिए, we must obey the commandment of God. हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना Here चाहिए। Joseph obeyed the command of God. यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन Whatever किया। God was telling them, they did. जो कुछ परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी उसका उसने पालन किया। Abraham obeyed the commandment of God. अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाओं का Are पालन we किया। obeying the commandment of God? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? In giving tithe, we are not obeying the commandment of God. आप दशमांश देने के द्वारा आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन Most कर रहे of हैं the क्या? time we sell our property in big amount. काफी बार हम अपनी संपत्ति को बड़े पैसों के रूप में बेच देते हैं। How much tithe we are giving? हम कितना दशमांश उसमें से देते Are हैं? we following the commandment of God? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? Never. कभी नहीं। If there are children, they are not good in study, और यदि आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, we will give that child to the work of God. हम उनको परमेश्वर के सेवकाई के लिए सौंप देते हैं। If our child is good, यदि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, we will send them. हम उनको बाहर भेजते हैं। Church, today I want to encourage you. कलीसिया में आज आपको उत्साहित करना चाहता God is leading you. हूं, यदि परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा We है, should follow the commandment of God. हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। Here the word of God says, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, Joseph was a father who was obedient. अब यूसुफ जो ऐसा पिता था जो आज्ञाकारी था। Are we obedient in the house of God? क्या हम परमेश्वर के भवन में आज्ञाकारी हैं? Fourth thing I want to tell you, और चौथी बात जो मैं आपको बताना that चाहता he हूँ, guided his children in the God's way. और उसने अपने बच्चों को परमेश्वर के वचनों के अनुसार बड़ा किया। He was a man who guided his children in a proper way. और उसने अपने बच्चों को सही रीति से परमेश्वर के वचन में बढ़ाया। We are living in such a days that children are not in a right way of the Lord. और आज हम ऐसी स्थिति में है कि हमारे बच्चे जो परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलते हैं। Today the responsibility of father is that we should look after our children. और आज पिता की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को उनको देखभाल करें। Are they reading the word of God? क्या वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? Are they praying? क्या वो प्रार्थना करते हैं? Are they going to youth alive? क्या वो यूथ अलाई में जाते हैं? Are they active in youth meeting? क्या वो यूथ मीटिंग में एक्टिव है? Are they active in spirituality? क्या वो आत्मिक रूप से एक्टिव है? But there are fathers, they do not care. और परंतु ऐसे पिता है वो कभी इसके बारे में सोचते नहीं They है। just think about their work. वो अपने काम के बारे में ही सोचते They रहते think हैं। that my wife is looking after my children. वो सोचते हैं कि मेरी पत्नी मेरे बच्चों की देखभाल That is करेगी। not their responsibility. It is the responsibility of father and mother. और वो सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी नहीं परंतु पति और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है। If you want that your
children should be a blessing for you, यदि आप चाहते कि आपके संतान आपके लिए आशीर्वादित बने, as a father, we should guide them in a proper way. और पिता के रूप में हमें सही रीति से उनका मार्गदर्शन करना We चाहिए। should train them in a proper way. हम इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि वो परमेश्वर के वचनों पे चले। Church, I want to encourage you. कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहता Father, हूँ, I want to encourage you. पिताओं मैं आपको उत्साहित करना This चाहता हूँ, quality is very much important in your life. और ये गुण आपके जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। So Joseph was a man who lead his children in a proper way. और यूसुफ वो व्यक्ति तो आप उसने अपने बच्चों को सही रीति से उनको पालन पोषण किया। We see in the book of Luke chapter 2. और लूका रचित सुसमाचार उसमें हम दूसरे अध्याय में देखते And in हैं, this chapter we see, chapter 2 and verse 41, it says that every year Jesus' parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. The word says they used to go every year for the festival of Passover. हर साल उसके पिता अपने बच्चों को लेकर जाते थे। Now Jesus was only 12 years old. और यीशु मसीह सिर्फ 12 वर्ष के थे, And the word of God, they went up to the festival according to the custom. और रीति रिवाज के अनुसार वो वहाँ प्रतिवर्ष जाते थे, Every year they used to go. और प्रतिवर्ष वहाँ जाते थे। The word of God says after the festival was over, while the parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता को नहीं जानते थे। Thinking he was in the company, they traveled on far a day. और यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए। And the word says then they began looking for him among their relatives and friends. और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, Then they did not find him. They went back to Jerusalem to look for him. पर जब वह नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। After 3 days, they found him in the temple courts, और sitting among the teacher, listening to them and asking them questions. और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उसे प्रश्न पूछ करते हुए पाया। And the word of God says, everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. जितने उसकी सुन रहे थे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। The word of God says people were amazed of Jesus. और हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह को लोग सुनकर काफी अचंभित थे। They were amazed how this boy is giving answer to us. और वो काफी अचंभित थे कि ये छोटा सा बालक कैसे हमारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। 12 years boy, एक 12 वर्ष का बालक answering big people, और बड़े बड़े लोगों को उत्तर दे रहा है, answering the teachers. और शिक्षक को उत्तर दे रहा And है, they are listening to Jesus. और वो यीशु मसीह की सुन रहे हैं। How it happened? और ये कैसे हुआ? Because his parent trained him. क्योंकि उसके पालकों ने उसको अच्छी तरह से उसका पालन They used पोषण to किया। take him to Jerusalem. वो यरूशलेम में आए। It is the responsibility of father that our children should come along with you in church. और ये पिता की जिम्मेदारी है कि उनके पुत्र और उनका परिवार संपूर्ण कलीसिया में आए। Today the father's responsibility is the same, that we should bring our children into और- the house of God. और आज भी पिता की जिम्मेदारी है कि उनके पुत्र और संपूर्ण परिवार कलीसिया में एक साथ आए। I thank parents who brought their children yesterday for the VBS. कल मैं धन्यवाद देता हूँ जिन परिवार ने अपने बच्चों को VBS के लिए भेजा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। We need to take care of our children. हमें अपने बच्चों का ध्यान करना है। Now Joseph used to guide his children. यूसुफ जो था अपने बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण कर There रहे were थे। many children to Joseph. और यूसुफ को काफी संतानें थी। In them there was James. याकूब भी था, He trained James. उसने याकूब को अच्छी तरह से पालन And पोषण किया। James was the first leader in the first century who lead the church. और याकूब जो था पहले कलीसिया का पहला व्यक्ति था जिसने कलीसिया को अगुवाई की। Who trained him? उसको किसने प्रशिक्षित किया? Joseph trained him. यूसुफ ने। He used to guide his children in a proper way. उसने अपने परिवार को अच्छे तरह से पालन पोषण किया। Today, church, I want to encourage you. कलीसिया में आपको उत्साहित करना As a चाहता हूँ। parents, I want to encourage you. पेरेंट्स के नाते आपको उत्साहित करना चाहता We हूँ। are living in the last days. हम अंतिम दिनों में है। We need to not neglect our children. हमें अपने परिवार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। We need to look after our children. हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना We need to चाहिए। think about their spirituality. हमें उनके आत्मिक जीवन के बारे में सोचना We see चाहिए। the life of Eli. हम एलिया के जीवन में को देखते हैं। He was a servant of God. वो परमेश्वर का सेवक था। His children were serving with him. उसके बच्चे उसके साथ सेवा The करते word थे। of God says they were not knowing God.
वो वचन कहता है कि उसके बच्चे परमेश्वर के बारे में जानते नहीं थे। What a sad thing it is. और कितनी दुख की बात है They ये। used to stay in the house of God, वो परमेश्वर के भवन में रहते थे, serving God. परमेश्वर की सेवा But the करते word of थे। God says वचन कहता है they were not knowing God. परंतु वो परमेश्वर को जानते नहीं We थे। are believers. हम विश्वासी We है, trust God. हम परमेश्वर पे भरोसा We रखते हैं। come to church every Sunday. हम प्रति रविवार कलीसिया में आते हैं। Our family people knows that we are very much strong believers. हमारे परिवार के लोग जानते हैं काफी दृढ़ विश्वासी है। Our colony people know that we are the believers of Jesus. हमारे कॉलोनी के लोग जानते हैं कि हम विश्वासी है यीशु मसीह के। They know every Sunday we go to church. वो जानते हैं कि हम प्रति रविवार चर्च में जाते हैं। If our children doesn't know Jesus, it is a sad thing. अब इसके होने के बावजूद यदि हमारे संतान जो है वो जानते नहीं कि यीशु मसीह क्या है, तो ये काफी दुख की बात है। If they did not accept Jesus as the Savior, यदि वो यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते हो, काफी दुख की बात what है। a sad thing it is. और कितने दुख की बात है। There is one young boy who comes to our church. एक जवान बच्चा था जो कलीसिया में आता था। From many days I am saying, why you are not taking baptism? और काफी दिनों से मैं उससे कह रहा था कि तुम बपतिस्मा क्यों नहीं लेते हो, Why you are not taking baptism? तुम बपतिस्मा क्यों नहीं लेते He is हो। not taking baptism. वो बपतिस्मा नहीं ले रहा From था his childhood he is coming to church. और अपने बचपन से ही वो कलीसिया में आता था, अभी भी आता है। He comes to church, वो कलीसिया में आता है, but he is not ready to take baptism. परंतु वो अभी भी बपतिस्मा ले नहीं रहा। Church, today I want to encourage you. कलीसिया में आपको उत्साहित कर, As a father and mother, आप माता पिता होने के we नाते should guide them. हमें उनकी अगुवाई करना We चाहिए। should bring children till the salvation. हमें उनको उनके उद्धार तक उनको लेकर आना है। This is the responsibility of father and mother. और यही माता पिता की जिम्मेदारी है। Ali failed in और- his duty. एलिया जो था अपने इस कार्य में विफल हुआ। Now see, as we are celebrating this Father's Day, जब हम देखते कि हम पिता दिन को मना रहे हैं our heavenly Father had that compassion. और हमारे परमेश्वर पिता का वो तरस वाला हृदय है, Same heart is given to every father. और वही हृदय सभी पिताओं को भी दिया है। But today many fathers are not very much serious in their life. परंतु काफी सारे पिता अपने जीवन में इस बारे में गंभीर नहीं But है। I believe that today God is speaking to your heart and परंतु mind, मैं आज विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके हृदय से आज बातें कर रहा that है we are going to look after our family, कि हमें अपने परिवार के बारे में सोचना look चाहिए, after our children, हमें बच्चों के बारे में that सोचना है they must experience the salvation. कि वो अपने जीवन में उद्धार का अनुभव करे। As we are celebrating this day, जब हम आज ये दिन मना the रहे हैं, qualities which were in the life of Joseph, यूसुफ के जीवन में जो गुण थे let that qualities come into our life. वही गुण हमारे जीवन में भी आना That चाहिए, we will become the righteous man. ताकि हम एक धर्मी व्यक्ति बने, We will be the dignified man. हम एक आदर युक्त व्यक्ति We बने, will be the obedient person. हम एक आज्ञाकारी व्यक्ति बने, And we will guide our children in a proper way. और हमें अपने बच्चों को अच्छी तरह से उनकी अगुवाई And करें। because of that, Joseph's children were blessing for the kingdom of God. और उसी कारण यूसुफ के बच्चे जो थे वो संसार के लिए एक आशीर्वाद का कारण बने। Joseph's son Jude, he wrote the letter. और यूसुफ का एक संतान थी यहूदा, वो उसने एक पत्र लिखा। James was a leader for the church. और याकूब कलीसिया का अगुवा बना। How he raised his children. उसने अपने बच्चों का किस तरह से पालन पोषण किया। Our children must be important in the kingdom of God. हमारे बच्चे भी उसी तरह परमेश्वर की राज्य में महत्वपूर्ण होना चाहिए। Father, you are very much important. और इसलिए पिता आप काफी महत्वपूर्ण I है। praise God for my father. मैं अपने पिता के लिए धन्यवाद देता हूँ, Because of him, my brother is in ministry. और उन्हीं के कारण मेरा भाई जो है वो आज सेवकाई में है, I am in the ministry. मैं सेवकाई में हूँ। They train us. उन्होंने इस तरह से तैयार किया, They train from the word of God. उन्होंने परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें तैयार I किया। praise for my father. मैं अपने पिता का धन्यवाद करता हूँ, Though he is not in this world, यद्यपि वो इस संसार में नहीं but है, whatever he have invested in our life, और जो कुछ उन्होंने हमारे जीवन में बोया it is really fruitful. और काफी फलदायी हुआ। And I am looking blessing in my family. और मैं अपने परिवार में भी उस आशीष को देखता Today, हूँ। Father, I want to encourage you. पिताओं मैं आपको बताना चाहता Think हूँ, about your children. अपने बच्चों के बारे में If they are सोचिए। not listening for you, यदि वो आपकी नहीं सुनते, go on your knees. आप अपने घुटनों पे Cry आइए, for them. उनके लिए आंसू बहाइए, Cry for them. उनके लिए आंसू बहाइए। God will wipe your tears. परमेश्वर आपके आंसू को पूछेगा। Let me tell you, when Abraham took a decision that I will sacrifice Isaac on that mountain,
जब अब्राहम ने वो निर्णय लिया कि उस पर्वत में जाके मैं अपने पुत्र का बलिदान दूंगा, At the moment when he used to realize, I will cut my son, और जब उसको पता चला कि मैं अपने बच्चे के ऊपर वो तलवार चलाने वाला he हूँ, must go away somewhere, and he used to cry for him. और वो कुछ दूरी पर गया, वहाँ उसने आंसू बहाए, Many times he must have cried. और काफी बार वो रोया होगा, Whole night he must have cried. और पूरी रात शायद वो रोया होगा, God saw his tears. और परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा, God saw his tears. और परमेश्वर ने उसके But आंसुओं को when देखा। time came, he took his hand over Isaac. जब उसने अपना हाथ इसहाक पे उठाया, God stopped. और परमेश्वर ने उसके हाथ को रोक लिया, God stopped him. और परमेश्वर ने उसके हाथ को रोक लिया। Our Lord is a Lord who have compassion. हमारा पिता वैसा परमेश्वर पिता है जो उसके भीतर तरस भरा हुआ Though है। your children are not listening to you today, हो सकता है आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते हो, but when father and mother come together and pray for the children, जब पिता और माता एकत्रित होकर बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, I believe God will work among your life. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य As a करेगा। father, never people think about us. और पिता के रूप में लोग हमारे बारे में कभी नहीं सोचते, They think that we are very much harsh. और वो लोग सोचते होंगे कि काफी कठोर है, But let me tell you, परंतु मुझे बताने दीजिए, Father has the heart of Heavenly Father. पिता के पास वो परमेश्वर पिता का हृदय है, तरस वाला। So God have placed you in your family इसलिए परमेश्वर ने आपको आपके परिवार में रखा है, as a father, एक पिता के रूप as a में, leader. एक अगुवे के रूप में। Qualities which were in the life of Joseph. और यूसुफ के जीवन में जो गुण थे, Let that quality come into your life. वही गुण हमारे जीवन में भी As आने we are चाहिए। in the presence of God, जब हम परमेश्वर के we'll उपस्थिति में, stand on our feet आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो and जाएं, we'll pray unto God. हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, We'll say to Lord, हम परमेश्वर से कहे, Father, Lord, I want to thank you for this wonderful day. धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस अद्भुत दिन के लिए। I praise you, O God. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। Uralaba shandaraba rikaraba sandaraba riandaraba raba raba shadadaba raba yandalaba sandaraba rikantoraba laba shadadaba laba yandalaba shadadaba. Thank you, Jesus. हालेलुया। Prabhu maza nara Prabhu maza premal bapa Prabhu maza taranara Prabhu maza premal bapa तुझे ज्ञाने जीवन माझे पूर्ण 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 आहे तुझे ज्ञाने जीवन माझे पूर्ण 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 आहे मी अनुभवतो तुझी कृपा रे मी अनुभवतो तुझी कृपा रे माझ्या देवा माझ्या पित्या चला आपण आपले हात वर करूया आणि परमेश्वराची आराधना करूया. प्रभू माझा तारणारा प्रभू माझा प्रेमळ बापा प्रभू माझा तारणारा हालेलुया प्रभू माझा प्रेमळ बापा तुझ सोडून जीवन माझे व्यर्थ 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 आहे तुझ सोडून जीवन माझे व्यर्थ व्यर्थ
सारे माझ्या देवा माझ्या पित्या प्रभू माझा तारणारा प्रभू माझा प्रेमळ बापा हालेलुया माझा सर्व पित्यांना विनंती करतो आपले हात वर करूया परमेश्वराची आराधना करूया जे काही लिडरशिप जे काही पुढारीपण देवाने आम्हाला दिलेला आहे त्या पुढारीपणाबद्दल देवाचा धन्यवाद करूया we will praise unto God the leadership is given by our almighty Jesus वो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें जो अगुवापन हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है उसके लिए we are the blessed man वो हम परमेश्वर के रूप जीवन के लिए धन्यवाद करते हुए उन्हें we हमें are the आशीर्वाद blessed father हम एक आशीर्वादित पिता है that God have gave that heart to us ये परमेश्वर ने हमें वो हृदय दिया है come on church we'll raise our hand and we'll praise unto आइए God कलीसिया हम अपने हाथों को उठाए उसकी स्तुति और we will आराधना करें pray for the father हम पिताओं के लिए प्रार्थना करेंगे they face many challenges in their life वो अपने जीवन में काफी चुनौतियों का सामना करते हैं most of the time they could not take decision और काफी बार वो निर्णय को नहीं ले पाते they could not take decision in their life वो अपने जीवन में सही निर्णय को नहीं ले पाते but हैं let God lead them to take decision और परमेश्वर उनको वो सामर्थ्य दे कि वो सही निर्णय को ले पाए hallelujah rikaraba shandalaba raba sandalaba raba laba oriente rebe shakarandalaba raba sandalaba raba laba hallelujah hallelujah Father Lord I pray you oh God वो पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ this morning I pray for every father who are in our in your house oh Father वो प्रभु जी इस भवन में उपस्थित हर एक पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ I knew that they face many challenges in their life मैं जानता हूँ कि वो अपने जीवन में काफी कठिन समय से जाते हैं they never share their heart to anybody वो अपने हृदय को दूसरे के साथ नहीं बांटते हैं that Lord Jesus you are the right place where they can share their heart हाँ प्रभु जी आप ही वही व्यक्ति है जिसके साथ वो अपने हृदय की बातों को बांट सके प्रभु जी I pray for every father मैं हर एक पिता के लिए प्रार्थना करता as हूँ they are crying in their heart जब अपने वो हृदय में रोते हैं प्रभु जी touch them oh Father प्रभु जी इसी वक्त आप उनको छू लीजिए प्रभु जी let the qualities of Joseph come into their life होने दीजिए यूसुफ के जीवन में जो गुण थे उनके जीवन में भी आने पाए that they will live a righteous life in their life ताकि वो अपने जीवन में एक धार्मिक जीवन जीने पाए प्रभु जी they will live a dignified life in their प्रभु life जी एक आदर युक्त जीवन को जीने पाए प्रभु जी and they will obey you oh God और वो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले बन सके प्रभु जी they will train their children in a godly way oh Father वो प्रभु जी अपने बच्चों को प्रभु जी आपके वचनों पर चलने वाला बनाने पाए प्रभु I जी commit each and everyone into your hand oh God मैं हर एक को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। every father who are leading their family oh Lord वो हर एक पिता जो अपने परिवार का नेतृत्व कर रहा है Father Lord I pray for the children who are not having the love of father और प्रभु जी उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इनके पास पिता का प्रेम नहीं है प्रभु they जी are missing their father Lord वो अपने पिता को की कमी को महसूस करते as हैं they are coming to church oh God जब वो चर्च में आते हैं प्रभु जी you be their father oh Lord प्रभु जी आप उनके पिता बनिए प्रभु जी they will not experience that they are orphan oh God उनको इस बात का अनुभव न होने पाए कि वो प्रभु जी अनाथ है प्रभु जी Father Lord I bless each and every children of God प्रभु जी हर एक बच्चों को यीशु के नाम से आशीर्वाद I commit each and every one oh Lord वो प्रभु जी हर एक को आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु जी in the name of Jesus oh God यीशु मसीह के नाम से पिता I pray for every mother oh God हर एक माता के लिए प्रार्थना करते हैं crying for the children oh God जो अपने बच्चों के लिए रोते हैं प्रभु bless them oh Lord प्रभु जी Jesus उनको आशीर्वादित कीजिए as we are celebrating this Father's Day oh God जबकि हम इस पिता दिन को मना रहे we हैं will प्रभु। see joy and godly generation raising in our church oh God हम देखना चाहते हैं कि एक आपके भय में चलने वाली प्रभु जी एक जनरेशन हम इस भवन में देखना चाहते हैं प्रभु जी
We commit our life to your hand, O God. हम आप सबका जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। We pray, Lord Jesus, the people who are sick in their life, आज जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, not feeling well, O God. वो जो अच्छा महसूस नहीं कर रहे, Touch them, heal them, O God. प्रभु जी उनको छू लीजिए, उनको चंगाई दीजिए प्रभु Facing जी। problem, O God. वो जो समस्याओं में है प्रभु जी, Family disturbance, O वो God. जिनके परिवार में कलह है प्रभु Let जी, your peace come into their life. उन्होंने होने दीजिए प्रभु जी, आपकी शांति उनके जीवन में आने पाए। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से ask this prayer. हम इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता। आमीन। आमीन।